Hello and welcome to our YouTube channel TMPS Online Classes. It's Deepak Tiwari, your maths teacher, here with a new topic, ratio and proportion, in which we will clear the concepts of the ratio and proportion. Here we start. Ratio and proportion. Then a name, a topic suggests the ratio. What is a ratio? A ratio is a relationship between the two things of the same kind. It means ratio एक रिलेशनशिप है दो ऐसी चीज़ों के बीच में जो दो ऐसी क्वांटिटीज़ के बीच में जो सेम हो. ओके, द सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ or the measurement quantities. It is expressed as A is to B. It means A is to B. This is the symbol of ratio. It is the symbol of ratio. Okay, then we will call it as A ratio B or A is to B. Here we will also express it as in the fraction. Okay, is to is also expressed as upon. We will write it as A upon B. Here A is antecedent and B, which is the denominator, is consequent. Okay, then it is the ratio between the antecedent and the consequent. If we are going to compare between the two things having the same quantity और अ यूनिट वी कैन यूज रेशियो. सपोज मेरे पास दो बॉटल्स हैं. ओके, दो बॉटल्स, एक छोटी बॉटल है और एक बड़ी वाटर बॉटल है. अब उन दोनों के बीच में अगर आप कंपेयर करोगे तो कैसे करोगे? देख के. बिल्कुल, वी विल कंपेयर इट बाय सेइंग इट दैट इट इज़ द बिगर वन, इट इज़ द स्मॉल वन. ओके, बट वी हैव यूज्ड हेयर द टू थिंग्स विच हैव सेम काइंड. दोनों चीज़ें बॉटल ही हैं जो कि दोनों सेम है, जो ये एक्सप्रेस करती हैं कि दोनों की यूनिट भी सेम होगी, दोनों की फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होगी. तो इट मीन्स रेशियो इज द रिलेशनशिप और द कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड हैविंग द सेम यूनिट. Now, if we talk about some facts about the ratio, the first fact is the ratio is said to be in the simplest form or in a lowest term if two quantities of a ratio have no common factor other than 1. सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम रेशियो की बात करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर रेशियो हो या लोवेस्ट फॉर्म में हम इसको 3:2 के तौर पर यूज़ कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि 3:2 इसका मतलब है कि ये एक लोएस्ट रेशियो है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसको और स्मॉलर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं. इट इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी 3:2, क्योंकि 3:2 इसमें 3 और 2 दोनों के ही एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों के ही जो फैक्टर हैं वो 1 के अलावा वो खुद हैं और कोई भी उनके फैक्टर नहीं है. देन द सेकंड fact is about to find a ratio of two quantities of a same kind. Both the quantities should be taken in the same unit. ओके, अगर हम दो क्वांटिटीज़ के बीच में रेशियो फाइंड कर रहे हैं जो कि सेम काइंड की होनी चाहिए, तो उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट भी सेम होगी. सपोज वी आर कंपेयरिंग अबाउट 250 ग्राम एंड 2 kg. ओके, हेयर लुक, इट इज़ ग्राम एंड इट इज़ kg. Here the quantities are equivalent but not the same. Then at first we have to equate the quantities. Here the gram, and now 2 kg will be equal to 2000 gram. Then look, these quantities are now same or similar. Then we will compare it. Okay, then we will compare it. After comparing it we will get 250 is to 2000 will be equal to 1:8. Okay, this is the second fact about the ratio. Then the third fact is ratio is a fraction. It has no unit. ratio क्या है? एक fraction है. क्या है? ratio एक fraction है. जैसे मैंने आपको बताया, if we are talking about 3:2, then we will express it as 3/2 as well, and it has no unit. इसकी कोई भी unit नहीं होती है. Now let's look about how will you express this ratio 18:24 in the simplest form. 18:24 which is in ratio. इसको आप simplest form या lowest term में कैसे चेंज करेंगे? मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था
ओके मैंने आपको रैशनल नंबर पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था जब भी किसी भी रेशियो को या किसी भी फ्रैक्शन को आपको सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना हो तो सिंपली उसको कॉमन फैक्टर से, लुक ध्यान देना, कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया जाता है टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो चलिए इसमें देखते हैं। देन 18:24 को हम सिंपलेस्ट ऐसे लिख सकते हैं विच इज़ इन द फ्रैक्शनल फॉर्म में। Okay, at first we will write here it is in a fractional form. Then talking about 18 and 24 which is the antecedent and consequent, then what is the common factor of 18 and 24? Then what is the highest common factor of 18 and 24? तो 18 और 24 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो सबसे लार्जेस्ट नंबर जिसके टेबल में 18 और 24 दोनों ही आते हों। तो 18 और 24 दोनों ही किसके टेबल में आएंगे? सबसे ऐसा हाईएस्ट फैक्टर है 6। देन इफ वी विल डिवाइड बोथ दिस एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट टू बाई 6 वी विल गेट 18 डिवाइडेड बाई 6 वी विल गेट 3 and 24 divided by 6 we will get 4. Then 3:4 is the required ratio which is in the lowest term or a lowest form after taking it 18:24. Then this ratio should be in the form 3:4. Okay. Then the other topic is the comparison between the two ratios. Okay, then if we are talking about which ratio is greater, then we will have to compare it. Suppose we have two ratios here, 5:6 or 6:7. These are the two ratios, 5:6 and 6:7. Then the question is which ratio is greater? Which is greater between these two given ratios? Which ratio is greater? Okay, then 5:6 and 6:7. Okay, we can write these ratios as 5/6 and 6/7. Look, the consequents here are 6 and 7. Then taking out the LCM of 6 and 7 at first. Denominators का LCM लेते हैं, मैंने पहले बताया था, which is 42. Okay, look. Then 42 is the LCM between 6 and 7. Then we have 5/6, which is the first fractional or a first ratio. We have to multiply it by the taken LCM. Okay, we will get 6 7 42 7 5 35. Now about the second fractional form 6/7, we have to also multiply it by the 47. 7 6 42, 6 6 36. Now here 36, look, we have computed here 35 and 36. Here 36 is greater than 35. Okay, then 36 जो आया है वो किस रेशियो से आया है? 6/7 से। तो इट मीन्स 6/7 इज ग्रेटर देन 5/6, i.e. आपका 6/7 इज ग्रेटर देन 5:6 आ जाएगा. ओके, इट इज द सिंपलेस्ट वे to compare between the two ratios. Okay, it is all about the ratio. It is the simple one. Now what about the proportion? Proportion क्या है? अभी तक हमने रेशियो पढ़ा. Then what about the proportion? The comparison between the two ratios of the same kind is called proportion. अगर आपको दो रेशियोज दिए गए हैं, आपको दो रेशियोज दिए गए हैं और वो दोनों रेशियो क्या है? सेम काइंड है. इट मीन्स कि उनकी रेशियोज जो हैं उनकी क्वांटिटी सेम है, तो वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, विच इज एक्सप्रेस एज A/B, यानी A/B, A/B will be equal to C/D or C/D. We will also write it as A/B is proportional to. Look, here it is the two signs, the ratio of the two. We have written here the two ratios, the group of the two ratios. It is the proportional sign or a symbol. Okay, it is the proportional. A/B is proportional to C/D, which is also can be expressed in the form of A/B here, and this one is will be equal to, place here the equal to C/D. Okay, then what about it is the first term, second term, then A and B, A and D, which are the extreme terms. Okay, which are the extreme terms, तो इनको हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम्स. एक्सट्रीम्स आपका क्या हो गया? A and B. Then we are talking about B and C here. Then B और C आपके क्या हो गए? बीच के टर्म्स है. ओके, बीच के टर्म्स है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? मीन्स. द मिडल टर्म्स आर ऑल्सो नोन एज मीन्स. देन B और C क्या होंगे? मीन्स होंगे. एंड A और D जो सबसे एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब एंड, लास्ट वाले, एक सबसे पहला और सबसे आखिरी, उनको हम एक्सट्रीम बोलेंगे. देन द सिंपल द कॉन्सेप्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सिंपल सा फॉर्मूला है कि दोनों A और D, देन एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट होगा
यानी ए और डी का जो मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल होगा मीन्स के प्रोडक्ट के, जो कि बी इंटू सी होगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस्ड पे हम आगे प्रपोर्शन के फॉर्म्स पढ़ेंगे। नाउ द टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन, द फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन वो प्रपोर्शन होता है जिसमें 3 क्वांटिटीज आर सेट टू बी इन कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन। याद रखिएगा 3 क्वांटिटीज उनको कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन कहा गया। व्हेन फर्स्ट मेक्स अ रेशियो विथ सेकंड, when a first that is A makes the ratio with second, clear, second है B, is equal to, ध्यान देना, is equal to that second क्या था B, makes the ratio with third, और third क्या हम C। तो इसको हम कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन कहेंगे, जिसमें पहला दूसरे से रेशियो बना रहा है विच इज रेशियो विथ B, which is the second one, and the second one which is the B makes the ratio with C, then it is said to be a continuate proportion where A, B and C are 3 quantities. Now the mean proportion. मीन प्रपोर्शन क्या है कि ए बी और सी ये 3 क्वांटिटीज़ हैं। पहली बात तो क्या है मीन प्रपोर्शन के लिए कि वो कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन में हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। मीन प्रपोर्शन को निकालने का तरीका कि ए दूसरे के साथ, यानी पहला दूसरे के साथ रेशियो बना रहा है और दूसरा तीसरे के साथ भी रेशियो बना रहा है, तो कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन जैसे मैंने आपको बताया। देन ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, क्लियर है, ओके। देन अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपने इसके पहले वाली क्लासेस में पढ़ रखा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, यानी b इंटू बी क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई सी। देन मीन क्या है, मीन प्रपोर्शन क्या है, मीन का मतलब ये दोनों टर्म्स, और इधर मीन्स क्या है, b विच इज द सेम और एग्जैक्ट इक्वल टू ईच अदर, दैट वाई वी हैव यूज्ड हियर b इंटू बी विच इज द कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन एज वेल। देन b स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी, ओके। देन b विल बी इक्वल टू a इंटू सी विच इज ac अंडर स्क्वायर रूट, ओके, अंडर स्क्वायर रूट। देन बी विल बी इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ए एंड सी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मीन प्रपोर्शन का कि फाइंड द मीन प्रपोर्शन, देन वी विल हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, ओके। देन द थर्ड प्रपोर्शन, द नेक्स्ट वन इज थर्ड प्रपोर्शनल। इफ ए बी एंड सी आर इन कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन, पहली बात तो रिक्वायरमेंट क्या है कि ए बी और सी तीनों ही कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन हैं, देन सी जो होगा वो थर्ड प्रपोर्शनल होगा। तो सबसे पहली बात हम रिक्वायरमेंट करते हैं, ये कॉन्टिन्यूट प्रपोर्शन है, हमने आपको बताया ए अपॉन बी विल बी इक्वल टू बी अपॉन सी, हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा। देन सी क्या होगा आपका, यानी कि थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला, सी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, इसी से देखिएगा, सी इक्वल टू क्या होगा आपका बी स्क्वायर लिखिए, और ए क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका ए के नीचे, देन सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आया तो सिंपली आपको कॉन्सेप्ट ये यूज करना है जैसे मैंने आपको बताया द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो क्या हो गया ए इंटू सी इक्वल टू बी इंटू बी मीन, ठीक है। देन ए सी हो गया इक्वल टू बी इंटू बी, यहाँ रह गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये क्या होगा आपका सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर, और ए क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। दिस इज द थर्ड प्रपोर्शन। नाउ द फोर्थ प्रपोर्शन, सिंपल सा भी कॉन्सेप्ट है कि इफ़ ए बी एंड सी, इफ़ ए बी एंड सी आर द थ्री आर इन द कॉन्टिन्यूट आर इन अ proportion, okay, we are talking about the fourth proportion here, okay। if a b c and d are in proportion, सबसे पहली बात तो क्या है, ये proportional में है a b c and d, तो फोर्थ proportion जो होगा वो आपका क्या होगा, इधर d होगा, क्योंकि देखिए पहला proportion, दूसरा proportion, तीसरा एंड चौथा। देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b, इसको हम क्या लिखेंगे proportion को, इक्वल टू c अपॉन d, ठीक है। तो d क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। देन b इंटू सी इक्वल टू a इंटू डी, हमको क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन, और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, d इक्वल टू b इंटू सी अपॉन a, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे d निकल आएगा। नाउ द कंपाउंडेड प्रोपोर्शनल और अ रेशियो, द कंपाउंडेड रेशियो, सपोज ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, ए बी सी और डी वो प्रपोर्शन में है, तो जो कंपाउंडेड रेशियो होगा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट ऑफ अ रेशियो एंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रेशियो। सपोज ए बी सी और डी, ठीक है, ये रेशियो में है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। देन कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा,
सिंपली जो कंपाउंडेड रेशियो होगा वो क्या होगा, विल बी इक्वल टू हेयर ए एंड सी, वो क्या है आपके, क्या है आपके एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि ए और सी जो ऊपर वाले होते हैं वो आपके क्या होंगे, एंटीसीडेंट होंगे, और नीचे वाले होंगे कॉन्सिक्वेंट। तो जो एंटीसीडेंट का प्रोडक्ट रेशियो, कॉन्सिक्वेंट का प्रोडक्ट, सिंपल। द प्रोडक्ट और द कंपाउंडेड रेशियो विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द antecedent and the product of the ratio, product of the consequent. Okay, then this is all about the types of proportion. Okay, if we are going to take the example, I will upload, okay, I will upload some of the questions related to the ratio and proportion in our upcoming video. Okay, then practice it, make sure that all the concepts will be clear, okay, about this chapter. Okay, that is all about this session. Hope you all cleared your concept in this video. I will be coming back again with a new topic. Till then, take care and bye bye.